all of you. I hope you all are fine at your home. Now, let us proceed with our next chapter, which we have started in the last lecture, that was table in LibreOffice Base. Okay, let us memorize just what we have learned in our previous chapter. We have learned what are the topics we are going to cover for this particular chapter. Okay, then we have learned what is a LibreOffice Base. It's a powerful open source database software, okay, that allows us to create, manage and process data in the form of a table. Next, we have learned about the database. डेटाबेस क्या होता है? कलेक्शन होता है डेटा का ऑर्गेनाइज्ड मैनर में, जिसके थ्रू हम उसे एक्सेस कर पाए, रिट्राइव कर पाए और उस डेटा को यूज कर पाए अकॉर्डिंग टू अवर नीड. Next, we have learned what are tables in LibreOffice Base. Tables from the basis of any database. A table structure define the field and its property. I've already told you कि tables बनी होती हैं combination of rows and columns से. columns क्या होते हैं आपके horizontal या फिर कह सकते हैं up से down, and rows क्या होती हैं vertical, that is left to right. Next, we have discussed about how we can start LibreOffice Base, what are the steps and in which categories we can start LibreOffice Base. Then we have learned how to create a blank database, what are the steps to create it. Next, we have learned how to save a blank database, कैसे हम एक blank database को सेव करते हैं ताकि later on हम उसे open up कर सकें as per our need. Now proceeding further, let us understand the database window. डेटाबेस की विंडो कैसी होती है, उसके क्या कंपोनेंट्स होते हैं या फिर पार्ट्स कंपोनेंट्स को क्या जाता है? कंपोनेंट बेसिकली आर नोन एज पार्ट्स ऑफ विच अ पर्टिकुलर थिंग इज मेड आउट. ठीक है, यहाँ पे कौन कौन से पार्ट है? एज यू कैन सी इन द गिवन पिक्चर, this one where my mouse is going, this is known as the title bar. Okay, इसे हम कहते हैं title bar. It contains the title of the particular document. Next, on the title bar only, title bar and menu bar. किसी किसी सॉफ्टवेयर में टाइटल बार और मेन्यू बार डिफरेंट होते हैं, जस्ट बिलो मेन्यू बार रहता है, और किसी किसी में एक ही साथ टाइटल बार और मेन्यू बार रिसाइड करते हैं. यहीं पे आपको टाइटल बार पे विंडो कंट्रोल बटन मिलेंगे, जिसके थ्रू आप मैक्सिमाइज कर सकते हो, मतलब साइज बड़ा कर सकते हो, मिनिमाइज कर सकते हो और एप्लीकेशन को क्लोज कर सकते हैं. नेक्स्ट, आपको टूल बार्स मिलेंगे. ठीक है, टूल बार्स क्या होते हैं? बेसिकली मेन्यू बार में जो आपको आइटम्स बेसिकली होते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ आइकन्स आपको टूल बार में वो दिखते हैं. ओके, यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज द कंपोनेंट्स और द थिंग्स विच आर बीइंग शोन ऑन अ टूल बार. नेक्स्ट, आप देख सकते हैं इधर, यहाँ मेरा माउस कर्सर जा रहा है, दिस इज नोन एज डेटाबेसेस. ठीक है, ये डेटाबेस होता है. टेबल, क्वेरी, फॉर्म्स, रिपोर्ट्स, these are the form of databases. This section is the column of icon on the left side of the window. ये contain करता है 4 icons basically. ठीक है, अब इसके बारे में हम later on पढ़ेंगे. This window, this particular window where my mouse is, you are able to see my you are able to see my mouse pointer. This window is known as tasks. Here are the various tasks that you can perform by selecting these particular icons from the database. Tables में ये particular option रहेंगे. First रहेगा create table in design view, use wizard to create table, next create view. Okay, here would be the description of that particular thing. Now queries में भी इसी तरीके के फॉर्मेट रहेंगे, थोड़ा सा चेंज रहेगा, फॉर्म्स में भी एंड रिपोर्ट्स में भी. तो टास्क चेंज हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू द पर्टिकुलर डेटाबेस. Here is the list. Now let us see what the list contain. List basically क्या रखता है? यहाँ पे list रहती हैं उन particular tables की जो आपने tables database के अंदर create करी हैं, या queries के अंदर, या फिर forms के अंदर, या reports के अंदर. ठीक है,
कि कौन कौन से, अगर आपकी नंबर ऑफ टेबल्स होंगी तो वो आपकी इस एरिया में मेंशन होंगी. नाउ प्रोसीडिंग फर्दर, now let us understand the database window. Let us read about their component. Title bar, the title bar located at the top, at I have earlier shown you the image, shows the name of the displayed database and window control button on the left side. It also displays the menu bar when you take your mouse pointer on it. आई थिंक इज इट इजीली अंडरस्टैंडेबल. ऑलरेडी आपको मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया था, एक रिव्यू दे दिया था क्या क्या कहाँ कहाँ होता है. नेक्स्ट, मेन्यू बार. इट डिस्प्लेज द नेम ऑफ द बेस मेन्यू. ओके, क्या करता है, बेस में जो मेन्यूज होते हैं उनको डिस्प्ले करता है. मेन्यू बार विल अपीयर ओनली व्हेन यू टेक योर माउस पॉइंटर ऑन द टाइटल बार. अब मेन्यू बार आपको मैंने दिखाया था, दिस वाज द मेन्यू बार एंड दीज आर द मेन्यू, फाइल, एडिट, व्यू, insert, okay, tables, window, these are the menus over the menu bar. I will show you a detailed demonstration of it. Just let us continue with it. Now toolbar क्या होता है, toolbar contains button you can use to select common commands such as save, print, okay, open. These kind of commands are there on the toolbar. I have shown you where is the toolbar. Here is, it is the toolbar where my mouse pointer is running. This is toolbar. Next is window control button. These buttons are used to minimize a program window, restore the window to full size or close the window. तीन functions perform करते हैं. Already told you हर menu bar पे या आपको title bar पे available होंगे. ठीक है, these are the window control button: cross, minimize and maximize. Next, अंडरस्टैंडिंग द डेटाबेस विंडो में, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर डेटाबेसेस. डेटाबेसेस क्या होते हैं. दिस सेक्शन is a column of icon on the left side of the window. It contains four icons, that is tables, queries, forms and reports. It contains four icons, that is table, queries, forms and report. अब हम इन आइकन्स के बारे में पढ़ेंगे, इनके थ्रू हम कौन कौन से डेटाबेसेस बना सकते हैं, किस फॉर्म के डेटाबेसेस को क्रिएट कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज ऑफ टेबल. In base, a database consists of tables organized in row and columns. A record is a row in a table that contain information about a given person, प्रोडक्ट और इवेंट. रो में मैंने आपको बताया था लेफ्ट टू राइट होती है आपकी रो. वहाँ पे क्या रहेगा, इंफॉर्मेशन रहेगी पर्सन के बारे में, उससे रिलेटेड प्रोडक्ट या फिर इवेंट जो भी कनेक्टेड है उससे, उस पर्टिकुलर रिलेशन में. A field is a column in a table that contain a specific piece of information with a record. फील्ड क्या होती है, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, मैंने आपको एग्जांपल दिया था. बेसिकली कॉलम के फॉर्म में अरेंज होती है फील्ड, हॉरिजॉन्टल जो होती है, या फिर आप उसे कह सकते हो अपवर्ड टू डाउनवर्ड. ठीक है, उसमें क्या रहता है, जैसे आपकी मार्क लिस्ट थी. asked you earlier to imagine that mark list में सबसे ऊपर आपके नेम्स होते हैं. नेम्स के कॉलम में नेम्स ही मिलेंगे आपको, रोल नंबर के कॉलम में रोल नंबर ही मिलेंगे आपको. ये होते हैं आपके फील्ड्स. नाउ लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. हियर दिस इज द इंटरफेस ऑफ LibreOffice base. Okay, these are the database and these are task area. This one is list area. Okay, this one is tables. Here it will show you the number of tables which are being made. Okay, now ऑलरेडी टोल्ड यू टेबल्स जो होती हैं किस फॉर्म में होती हैं, रोज एंड कॉलम. मैंने आपके लिए एक टेबल बना रखी है. डबल क्लिक करेंगे, अब आप देख रहे हैं दिस इज फॉर पर्टिकुलर टेबल. दीज आर द हेड्स और यू कुड से फील्ड्स. इन फील्ड्स में यही इसी टाइप का डेटा प्लेस्ड रहेगा. समझ में आ रहा है. ठीक है, रो में आपका अरेंज है एंड कॉलम के फॉर्म में अरेंज है. ये हो गई आपकी टेबल के फॉर्म में अरेंज. मुझे लगता है इस पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन से आपको समझ में आया होगा. नाउ कमिंग बैक टू द स्लाइड, क्वेरीज क्या होती हैं. यू कैन फिल्टर अ टेबल टू शो ओनली सर्टेन रिकॉर्ड्स एंड फील्ड्स. यू कैन ऑल्सो क्रिएट अ क्वेरी which is like a saved filter. Queries also enables you to combine data from the multiple related tables into a single data sheet of result.
बेसिकली क्या होता है, टेबल में देयर आर नंबर ऑफ डेटा, मतलब देयर आर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इज देयर। अगर आपको उसको सॉर्ट करना है किसी पर्टिकुलर कैटेगरी से, कि अगर आपकी टेबल है जैसे कि आपके पास बुक्स हैं और बुक्स की प्राइसेस अलग अलग आपने इनपुट कर रखी है, ऑलरेडी टेबल बना रखी है, तो आप क्वेरी में एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया डिफाइन करेंगे कि फाइंड द बुक्स विच आर of cost greater than 200 rupees and find the books which are of cost more than 300 rupees। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग कैटेगरीज में आप ले लेंगे तो आपको वो पर्टिकुलर डेटा मिल जाएगा। अगर आप उसमें ये भी डिफाइन करेंगे किस पर्टिकुलर फील्ड, खाली नेम फील्ड दिखानी है उस बुक की, उस बुक की डेट ऑफ परचेज दिखानी है, या जो भी आपने टेबल में हेड्स के अंदर प्लेस कर रखा है, हेड्स जो जो बना रखे हैं वो सारे दिखाने हैं, ये आपको सिलेक्ट करना पड़ता है क्वेरी में। बेसिकली ये आपको सर्टेन रिकॉर्ड्स और फील्ड दिखाती है जो आप इसको बताते हैं दिखाने के लिए। ओके, नाउ प्रोसीडिंग फर्दर, what are forms? Forms क्या होते हैं? Each table appears to you as a spreadsheet grid. Grid होता है डेटा शीट का। You can type directly into the data sheet. उस डेटा शीट मतलब एक, जैसे आप कोई फॉर्म भरते हैं उसी फॉर्म में वो फील्ड्स जो मैंने आपको टेबल में दिखाई थी उस फॉर्म में वो अवेलेबल हो जाएंगी आपको। आपको क्या करना है, आपको उसको फिल आउट करना है। यू कैन ऑल्सो क्रिएट फॉर्म विच आर लाइक डायलॉग बॉक्सेस दैट प्रॉम्प्ट्स फ्रॉम फील्ड एंट्री, जो फील्ड एंट्री पे क्लिक करने पे आपको प्रॉम्प्ट देती है टू मेक अ डेटा एंट्री मोर कन्वीनियंट। बेसिकली ये आपको जो एंट्री करने का मेथड जो है वो ईजियर बना देता है। नेक्स्ट, रिपोर्ट्स। Reports present data from tables and queries in an attractive format। क्या होता है कि आपको एक एंड रिजल्ट या रिपोर्ट चाहिए होती है, तो हम इस रिपोर्ट पर्टिकुलर फंक्शन का यूज़ करते हैं और वो टेबल्स जो हमने बनाई हुई हैं और जो क्वेरीज हमने जो क्रिएट करी हुई हैं उन्हें एक अट्रैक्टिव और कंप्लीट फॉर्म विद टाइल्स, हेडर्स, फुटर्स एंड ग्राफिक्स हमें शो करते हैं। वी विल लर्न अबाउट दिस पर्टिकुलर डेटाबेस विंडो कंपोनेंट। ठीक है, इन डेटाबेसेस के बारे में हम लेटर ऑन पढ़ेंगे, डोंट गेट वरीड, जस्ट दिस इज एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर इंटरफेस, क्या क्या होता है उनसे। नेक्स्ट, डिपेंडिंग ऑन द वर्क एरिया सिलेक्टेड, मतलब आपने वर्क एरिया कौन सा सिलेक्ट करा है, टेबल्स का करा है, क्वेरीज का करा है, फॉर्म्स का या रिपोर्ट का, उसके अकॉर्डिंग वेरियस टास्क कैरिड आउट करी जाती हैं। ठीक है, दिस इज द पार्ट contains a list of tasks that can be done related to the icon selected from the database section. For example, when a table icon is selected in the database, three tasks appears in this section. Two of them help you to create a table and one of them help you to view the table. ठीक है, I will show it to you. Just wait. The right side of the task section has description heading which gives you information about each task. हर टास्क के बारे में, जब आप टास्क को सिलेक्ट करेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन देगी। क्लिक ऑन एनी वन ऑफ द टास्क टू सी द डिस्क्रिप्शन, क्या होगा इस टास्क से वो आपको इन्फॉर्मेशन शो करेगा। आई विल शो इट टू यू वेयर इट अपेयर्स। नेक्स्ट इज लिस्ट। व्हेन यू सिलेक्ट एनी आइकन, आप कोई भी आइकन सिलेक्ट करो, टेबल, क्वेरीज, फॉर्म, रिपोर्ट्स, in database section, this section contain a list of table, queries, forms, report respectively। आप जो आइकन सिलेक्ट करोगे उस आइकन के अंदर, आपने अगर टेबल्स के अंदर टेबल सिलेक्ट करी होंगी तो ये लिस्ट देगा आपको टेबल्स की। समझ रहे हैं? अगर आपने क्वेरीज बना रखी हैं, क्वेरीज आइकन सिलेक्ट करा तो ये आपको नंबर ऑफ क्वेरीज के आइकन्स देगा। ठीक है, अगर आपने फॉर्म्स बना रखे हैं तो आपको फॉर्म्स के आइकन्स देगा। अगर आपने रिपोर्ट्स बना रखी हैं तो रिपोर्ट्स के देगा रिस्पेक्टिवली। द टाइटल फॉर दिस सेक्शन इज द नेम ऑफ द आइकन सिलेक्टेड। जो आइकन आपने सिलेक्ट करा है डेटाबेस में से, टेबल, क्वेरी, फॉर्म, वो इसका हेडिंग हो जाता है उस टाइम पे। द व्यू इज कंट्रोल्ड बाय ड्रॉप डाउन लिस्ट containing three options: none, document information and document। Now let us have a practical look of that particular task and list section, what it does। Now let me resume to our database। This is our database। ठीक है, ये हमारा database है, बेसिकली विंडो है। नाउ अगर आप टेबल में क्लिक करेंगे तो टेबल में here these are the task, these are the task, this is the description area। when you click select this particular create table in design view, description tells you, as you can see, description tells you create a table
by specifying the field name, properties as well as the data types. अब अगर आप इसका नेक्स्ट सिलेक्ट करेंगे, यूज विजार्ड टू क्रिएट अ टेबल, चूज फ्रॉम द सिलेक्शन ऑफ द बिजनेस और पर्सनल टेबल टेम्पलेट। प्री डिफाइंड टेबल के टेम्पलेट है, मतलब आप उनमें से चूज कर सकते हैं फील्ड्स जो आपको चाहिए अपने हेड्स के लिए, विच यू कैन कस्टमाइज टू क्रिएट अ टेबल। Now create view a view by specifying the tables and names you would like to have visible। आप व्यू बना सकते हो टेबल का या फिर पूरी टेबल ही देख सकते हो जैसे आप चाहते हो। This one, as you can see, this is the लिस्ट एरिया। यहाँ पे देखो मैंने टेबल पे सिलेक्ट कर रखा है, तो इसमें जो लिस्ट आ रही है टेबल की ए, खाली एक ही टेबल बनी है इसलिए ये लिस्ट आ रही है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब हम क्वेरीज पे आते हैं। क्वेरीज में टास्क हमारी चेंज हो गई। अब इस पे क्लिक करोगे, इट विल गिव यू द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर फर्स्ट टास्क। देन सेकंड पे क्लिक करोगे तो सेकंड टास्क के बारे में, थर्ड पे क्लिक करेंगे तो थर्ड टास्क के बारे में। एंड नाउ अगेन यू कैन सी लिस्ट का जो नेम है वो चेंज हो गया, क्योंकि अगर इसमें कोई क्वेरी बनी होती तो यहाँ पे जहाँ माउस कर्सर है यहाँ पे आपका नेम आता उस क्वेरी का। देन फॉर्म्स, अब फॉर्म्स ले लेते हैं। जैसे आप यहाँ पे भी टास्क में दो टास्क अवेलेबल हैं, पहला क्रिएट फ्रॉम इन डिजाइन व्यू, यूज विजार्ड टू क्रिएट अ फॉर्म। दोनों का डिस्क्रिप्शन दे रखा है कि किस पर्टिकुलर टास्क से क्या वर्क परफॉर्म होता है। अब इसका जो नेक्स्ट आते हैं नीचे वाली विंडो पे लिस्ट में, यहाँ पे इसका नेम चेंज हो गया है, इट हैज चेंज टू फॉर्म्स। समझ में आ रहा है, मतलब जो मैंने आपको लास्ट लाइन बताई थी कि द व्यू इज सॉरी, द टाइटल ऑफ द सिलेक्शन इज द नेम ऑफ द आइकन सिलेक्टेड। देखो जो हम आइकन सिलेक्ट कर रहे हैं वही इसका नेम हो रहा है, क्वेरीज भी हो रहा है, टेबल्स भी हो रहा है, ऐसे ही। नाउ रिपोर्ट्स पे आते हैं। यहाँ भी टास्क हैं, दो टास्क प्रेजेंट हैं, क्रिएट रिपोर्ट इन डिजाइन व्यू, यूज विजार्ड टू क्रिएट रिपोर्ट। नाउ इट विल गिविंग यू अ डिस्क्रिप्शन हियर। जब आप सिलेक्ट करोगे, आपने सिलेक्ट कर लिया, इट विल गिव यू अ डिस्क्रिप्शन, सॉरी, नाउ इट इज गोइंग टू गिव यू अ डिस्क्रिप्शन। So this is the particular task and list area which I wanted to make you understand briefly. I hope with this particular explanation things would be clear in your mind regarding the database window interface, its components, and the database and the various icons that are present there, about the task area, about the list area, and about the database area and the way toolbar of the LibreOffice database. This is going to be the crux of your lecture. You have today understand it about the interface or about the components of a database window. We will learn about more things in our next chapter, in our next lecture. Thank you. Keep revising. Stay home. Stay safe.